Hello and welcome to Sunil Jha Show and you are watching P for Politics. भारत के दो नाम हैं. Officially, India is represented or termed as India and also Bharat. यानी भारत और India ये दो official name हैं as per Constitution that has been given to our country. But now there appears to be a huge controversy on the issue whether the government is headed to change the country's name or rather amend the country's name to make it only one name, which is Bharat and not India. वो इसलिए क्योंकि जो कुछ भी पिछले 24 घंटे में हुए हैं उसके बाद एक पूरा डिबेट इस सवाल पे छिड़ा हुआ है कि क्या सरकार देश का नाम केवल और केवल भारत करने की तैयारी में है. क्या मोदी सरकार इंडिया को ऑफिशियली देश के नाम के तौर पे नहीं रखना चाहती है. इज द गवर्नमेंट गोइंग टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक भारत एज द कंट्रीज ओनली ऑफिशियल नेम? दिस क्वेश्चन हैज कम अप एज एंड इज बीइंग डिबेटेड सीवियरली फॉर 3 रीजंस. अब 3 रीजंस हैं जिसके कारण ये क्वेश्चन whether the government is going to change the constitution and make Bharat as the official and only official name of this country. So अब तक अगर भारत और इंडिया के नाम से रेफर कर रहे थे इस देश को, तो आगे से क्या सरकार इस तैयारी में है, मोदी सरकार, कि अब आगे केवल और केवल भारत को भारत के तौर पर ही रेफर किया जाएगा, whether while speaking English or speaking Hindi. And if this debate has been ignited, there are reasons for it. Fundamentally, there are 3 reasons. One by one, I am just outlining those reasons and then we'll go into the details of what has happened. पहला रीजन ये है कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने G20 समिट अभी होने वाला है. आप सब जानते हैं कि G20 समिट इज बीइंग हेल्ड इन द नेशनल कैपिटल, दैट इज न्यू दिल्ली, फ्रॉम द 9th of September till 10th of September. ये 2 दिन की G20 समिट पहली बार भारत में हो रही है. इससे पहले भारत में कभी G20 समिट नहीं हुई. इंडिया ने कभी भी G20 का चेयरमैनशिप नहीं लिया या प्रेसिडेंटशिप नहीं लिया. This is the first time and it's a prestigious event when G20 is being held in India and New Delhi is hosting it. So while there is a preparation and there is a government activity going on as far as G20 summit is concerned, a lot of new things are coming to fore. So one of the thing is that the president Draupadi Murmu, she sent out invitations for the official dinner of G20 on the 9th of night at Rashtrapati Bhavan. So शुक्रवार 9 तारीख की शाम, 9 तारीख यानी आज 5 तारीख है, आज मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 8 शनिवार, Saturday, if I'm not wrong, Saturday is 9th. So 9th of September, there is an official dinner hosted by the Rashtrapati Bhavan for all the dignitaries, all the guests, all the special invitees of the G20 summit. अब ये सबसे पहला रीजन और पहला कॉन्टेक्स्ट है जिसके कारण ये सवाल उठा कि क्या सरकार इस देश में का नाम केवल और केवल भारत करने वाली है. Is the government only going to name this country as Bharat and going to remove the name India from the constitution? Why this question came? What was so special about the invitation that Draupadi Murmu, the president of India, sent out? In the invitation, while referring to the president, that the president requests your presence at the dinner, there normally what happened till now was that the president would write the president of India or the president of Republic of India. But now this time there has been a change. And Draupadi Murmu has referred herself as the president of Bharat. And she has requested the pleasure of the company of XYZ and the name of the dignitaries or the special invitee or the guest. So the whole controversy started because President Draupadi Murmu sent out an invitation for the official dinner of G20 summit on the 9th of September in which she referred herself as the president of Bharat. तो जो कंट्रोवर्सी हुई वो इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू ने जो न्योता भेजा गेस्ट को
उसमें लिखा कि वो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के तौर पर आपको ये निमंत्रण दे रही है। अब हिंदी में आमतौर पर भारत ही लिखते हैं, इंग्लिश में इंडिया लिखते हैं, लेकिन ये इनविटेशन इंग्लिश में भी भारत के तौर पर ही भेजा गया। दूसरा रीजन, ये तो पहला रीजन है इस पूरे कंट्रोवर्सी का और इस सवाल का कि व्हाई देयर इज अ स्पेकुलेशन अबाउट वेदर द नेम ऑफ द कंट्री इज बीइंग चेंज। सो इसका पहला रीजन तो द्रौपदी मुर्मू का ये इनविटेशन। अब दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द 18th ऑफ सितंबर टिल 22nd ऑफ सितंबर बुलाया है 5 दिन के लिए। अब ये स्पेशल सेशन को बुलाने की जरूरत क्या पड़ी? बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि व्हाई इज द स्पेशल सेशन इज बीइंग कॉल्ड। अब 3-4 चीजें एजेंडे पे हैं। हो सकता है ये स्पेशल सेशन यूनिफाइड सिविल कोड पर हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हो, या फिर विमेन्स रिजर्वेशन पे हो, या वन नेशन वन इलेक्शन पे हो। इसके अलावा ये जो चौथी चीज which has been added to the list of the possible agenda for the parliament session starting on the 18th of September is what the president has hinted, which is whether the government is changing the name of the country from India and Bharat to only Bharat. तो क्योंकि प्रेसिडेंट ने अपने इनविटेशन में भारत लिख दिया, तो अब ये स्पेकुलेशन शुरू हो गया कि जो सेशन सरकार बुला रही है पार्लियामेंट की, स्पेशल सेशन फ्रॉम द 18th ऑफ जून सितंबर, यानी सितंबर 18 से जो सेशन बुला रही है पार्लियामेंट की, उसमें वो ऐसा कर सकती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कि बिल ला सकती है और कह सकती है कि हम इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हैं और अब इस देश का नाम केवल एक भारत होगा। दिस इज द सेकेंड रीजन व्हाई, बिकॉज देयर इज अ स्पेशल सेशन बीइंग कॉल्ड, और वो 2+2 करके लोग देख रहे हैं कि ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है कहीं इसलिए तो नहीं बुलाया गया है कि देश का नाम 2 से 1 किया जाना चाहती है मोदी सरकार। अब तीसरा रीजन क्या है, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि उसका टाइमिंग बड़ा रेलिवेंट है। अब इस तस्वीर में जो मैंने आपको प्रॉम्प्ट किया हुआ है, इस तस्वीर में आपको 4 तस्वीरें दिख रही है। पहला कोलाज में पहली तस्वीर प्रेसिडेंट मुर्मू की है। सेकंड, पार्लियामेंट जो नई बिल्डिंग है उसके लोकसभा जो है उसकी है। तीसरी तस्वीर आरएसएस चीफ मोहन भागवत की, और चौथी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको बदलने की तैयारी है, यानी वो प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सरकार बदलना चाहती है, आर्टिकल 1 जिसमें लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। अब इसको बदलने की बात हो रही है, तो इसमें तीसरा रीजन जो है वो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत। अब कैसे? मोहन भागवत का मंडे को सोमवार शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। अब वो स्टेटमेंट को भी लोग इससे जोड़ के देख रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि बहुत जरूरी है कि लोग इस देश का नाम केवल और केवल भारत के नाम पर रेफर करें। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट हियर ऑन पीपल शुड make a reference to this country only as Bharat and not with 2 name or as India. अब उनका कोट क्या है वो मैं पढ़ के सुना देता हूं। लोगों को इंडिया की बजाय भारत कहना चाहिए, ये आरएसएस चीफ मोहन भागवत का स्टेटमेंट। हमारे देश का नाम सदियों से भारत रहा है, भाषा कोई भी हो, नाम एक ही रहता है। हमारा देश भारत है और हमें इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करना होगा। हमें अपने देश को भारत कहना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको लोग समझते हैं क्योंकि आरएसएस इज द आइडियोलॉग और द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द सोर्स ऑफ द डिसीजंस और द आइडियोलॉजी दैट बीजेपी हैज। सो क्योंकि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है और बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी आरएसएस से ड्रॉ करती है, तो मोहन भागवत का स्टेटमेंट रेलिवेंट हो जाता है, बिकॉज फिर वो सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन है बीजेपी के लिए। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको लग रहा है कि ये 3 चीजें जो है, प्रेसिडेंट मुर्मू का इन्विटेशन, पार्लियामेंट सेशन का कॉल करना और आरएसएस चीफ का ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा अब इस देश में लोगों को इंडिया कहना बंद करना चाहिए और इस देश को केवल और केवल भारत के नाम पर रेफर करना चाहिए। वी शुड ओनली रेफर
to this country as Bharat and not India. We should stop the use of the name India and we should only use the name Bharat. And this comes from RSS chief मोहन भागवत. तो मोहन भागवत ने जो कहा उससे बहुत सारे लोगों ने सोचने लगे वो लोग कि शायद सरकार वाकई इस देश का नाम बदलने की तैयारी में. गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया. गवर्नमेंट ने एक बार भी नहीं कहा है कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं कि हम इस देश का नाम भारत से और इंडिया से बदलकर केवल और केवल भारत करने वाले हैं. तो इंडिया और भारत ये डिबेट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज वी हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. लेकिन बात निकाल दी लोगों ने, बात निकाल दी और बात दूर तलक चली गई. अब इसमें कितनी सच्चाई नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा. पार्लियामेंट का सेशन भी होने वाला है, उसका एजेंडा भी अभी आया नहीं. एजेंडा आएगा तो क्लियर हो जाएगा, बट द एजेंडा इज नॉट देयर. So we do not know whether it is Uniform Civil Code or Women's Reservation Bill or one nation, one election or the name. We don't know anything. But this will be known only once the agenda of the next parliament session, which is the special parliament session, starting from the 18th of September till 22nd of September. उसका एक बार एजेंडा क्लियर हो जाए तो पता चलेगा कौन कौन से बिल हैं जो गवर्नमेंट लाना चाहती है या किस लिए वो इस सेशन को बुलाना चाहती है. जैसे ही प्रेसिडेंट मुर्मू ने ये इनविटेशन भेजा और इस इनविटेशन की बात फैली और उसको फैलाया किसने? जयराम रमेश ने. जयराम रमेश ने प्रेसिडेंट मुर्मू के G20 ऑफिशियल डिनर का इनविटेशन जैसे ही रोल आउट हुआ उन्होंने एक ट्वीट किया और पूरा पॉलिटिकल डिबेट इस पर स्टार्ट हो गया. Now we all know that India is hosting G20 summit for the first time ever in New Delhi for 2 days on September 9th and 10th at the newly built convention center at Pragati Maidan. अब प्रगति मैदान का जो कन्वेंशन सेंटर है वो बहुत खूबसूरत बना है जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं. और यहां पर G20 के सारे लीडर्स, ये वो कन्वेंशन सेंटर है जिसकी तस्वीर आप नीचे देख रहे हैं. यह है प्रगति मैदान का नया कन्वेंशन सेंटर. ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ब्यूटीफुल कन्वेंशन सेंटर, ब्यूटीफुल आउटलुक, ब्यूटीफुल हॉर्टिकल्चर, सब कुछ खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है. और यहां पर दुनिया के 20 सबसे बड़े देश जो हैं उसके नेता 2 दिन के लिए 9 तारीख और 10 तारीख को पहली बार भारत में मिलेंगे प्रगति मैदान. और इस ही इवेंट के जो ऑफिशियल डिनर का इनविटेशन प्रेसिडेंट मुर्मू ने भेजा था और उसी को लेकर इतना डिबेट हो रहा है. और जैसे ही वो रोल आउट हुआ ये पूरा ऑपोजिशन जो आप प्लॉट देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा ऑपोजिशन बेंच एक्टिव हो गया और सबसे पहले एक्टिव हुए मिस्टर जयराम रमेश. तो जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया. जयराम रमेश को आप सब लोग जानते हैं, मैं एक बार फिर से उनकी पिक्चर प्रॉम्प्ट कर देता हूं सो दैट दोज हु डू नॉट नो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई. ही इज मिस्टर जयराम रमेश, द कांग्रेस लीडर. स्पीक्स लेस बट दीज डेज ही इज वेरी एक्टिव. सो जयराम रमेश ने जैसे ही ये इनविटेशन देखा उसको उन्होंने अपने ट्वीट के साथ अटैच किया और उन्होंने ट्वीट भेज दी. अब इस ट्वीट के साथ उन्होंने लिखा और इन्फर किया कि द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द कंट्रीज नेम एज द इनविटेशन सजेस्ट. एंड देन ही राइटेड व्हाट ही वांटेड टू राइट इन द ट्वीट एंड दिस इज व्हाट ही रोट इन हिज ट्वीट. तो जैसे ही प्रेसिडेंट मुर्मू ने इनविटेशन भेजा, जयराम रमेश कांग्रेस के जो लीडर हैं वो एक्टिव हुए. उन्होंने कहा सरकार जो है इस देश का नाम बदलने वाली है, इंडिया को हटाने वाली है और भारत को देश का नाम केवल और केवल भारत बनाना चाहती है. और उन्होंने वो इनविटेशन भी लगा दिया जो प्रेसिडेंट मुर्मू ने भेजा था. और साथ में जो उन्होंने लिखा वो ये, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में बताता. सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू. दिस इज जयराम रमेश, द कांग्रेस लीडर. सो द न्यूज इज इंडीड ट्रू. Rashtrapati Bhavan has sent out an invite for a G20 dinner on September 9th in the name of President of Bharat instead of the usual President of India. ये खबर वाकई सच है. राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इनविटेशन भेजा है उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है. और ये वो ट्वीट है जिसने जयराम रमेश के उस ट्वीट ने बहुत सारे लोगों को बताया कि शायद कुछ गड़बड़ है. अब इस देश का नाम इंडिया भी है, इस देश का नाम भारत भी है. वी ऑल नो दैट.
that India, this country has two names, and officially two names. While we are also referred by a third name called Hindustan, but officially we only have two names, Bharat and India. So whether the president refers to herself as the president of Bharat or refers herself as the president of India, it doesn't make a difference. But for Mr. Ramesh, Jairam Ramesh, it was a big issue. So the moment he sent out, obviously there was a debate that was bound to start. मेरा सवाल है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, तो भारत का अगर रहने वाला हूं तो मुझे भारत शब्द से क्या एतराज हो सकता है? कोई भी शख्स जो इस देश में रहता है उसे इस शब्द से क्या एतराज हो सकता है? अगर राष्ट्रपति कह रही हैं कि मैं भारत की राष्ट्रपति हूं, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? इससे फर्क क्या पड़ता है? हकीकत यह है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, ये तो सच है कि मैं भारत का रहने वाला हूं, क्या इस पर भी किसी को एतराज हो सकता है? ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट है, जो पूरा ड्रामा है, जो पूरा कंट्रोवर्सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज दिस फस ऑल अबाउट? इफ द प्रेसिडेंट सेज दैट शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, सो व्हाट? इज भारत नॉट द नेम ऑफ दिस कंट्री? आर वी नॉट referred as Bharat? When we are referred to as Bharat also, then what is the whole fuss about? Why is so much of debate when just a few days before the G20 prestigious summit, are we discussing this dinner invitation just a day ahead of the summit? क्या हमारे पास एजेंडे के में कुछ भी नहीं है? जब पता है पूरी दुनिया की नजर G20 पे है, जो पहली बार भारत में हो रहा है, हम कंट्रोवर्सी किस बात पर उठा रहे हैं? एक इनविटेशन जो प्रेसिडेंट भेज रही है, एंड प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम लीडर ऑफ दिस कंट्री, out of the political arena. She has nothing to do with politics. So अगर कोई प्रेसिडेंट ये इनविटेशन भेज रही है तो स्पेकुलेशन की गुंजाइश कहां होती है? बट लेट्स एग्जामिन व्हाट जयराम रमेश's ट्वीट इज इन्फरिंग, और वो ट्वीट के मुताबिक सरकार इस देश का नाम बदलना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर हो रही हैं, क्योंकि मैंने जो तस्वीर चौथी दिखाई वो कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि फंडामेंटल तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देश के नाम को लेके क्या कहता है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट एंड देन विल सी वेदर जयराम रमेश's Congress's objection is justified or not, and then I will also ask a few questions which are extremely relevant that all the parties which are objecting to this must answer. So the constitution, while being written in English, अब हुआ क्या है मैं वो बता रहा हूं। Indian constitution was being written in English, we all know this, and while it was being written in English, it referred to India not as India alone, but India that is Bharat, because the makers of the constitution were particular about the word Bharat to be mentioned in the constitution. Bharat was their first choice and English was taken and India was taken as the co-name. So जब ये डिस्कशन हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रही थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया वो सब इंग्लिश में लिखा गया। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पहले इंग्लिश में लिखा गया। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फिर आप पहले क्या लिखेंगे? इंग्लिश वर्ड लिखेंगे या हिंदी वर्ड लिखेंगे? इस देश को दो नाम से रेफर किया जाता है। अब इंडिया क्यों कहा जाता है? इंडस सिविलाइजेशन से, इंडस रिवर से इंडिया फ्लो करता है, वहां से इंडिया का रेफरेंस आना शुरू हुआ। भारत का रेफरेंस तो बहुत पहले से आ रहा है। तो भारत और इंडिया एक कॉमन रेफरेंस था इस देश के लिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में लिखा जा रहा था, चॉइस ये था कि आप एक नाम रखोगे कि दो नाम रखोगे। कॉन्स्टिट्यूशन के जो कमिटी बनी उसमें जो मेंबर्स थे, मेजॉरिटी ने बोला नहीं, वी शुड हैव टू नेम्स बिकॉज अल्टीमेटली इंडिया विल बी अ bigger nation, it has to deal with the entire world, we should have an English name also. So what's wrong in retaining India? But they did not want to drop Bharat, और भारत को लेकर पूरी यूनिटी थी कि भारत नाम तो होगा ही, क्या इंडिया ऐड करना है या नहीं करना है। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त लिखा, क्योंकि वो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, दैट इज द फंडामेंटल। मिस्टर जयराम रमेश हैज टू अंडरस्टैंड, दिस इज द फंडामेंटल, that the constitution was being written in English
Hence, India came first and Bharat came next. Because India, that is Bharat. Otherwise, जो हिंदी में लिखी जा रही होती तो वो भारत यानी इंडिया होता, लेकिन हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखी जा रही. Since India was an English name and Bharat a Hindi name, and because the constitution was being written in English, they decided to use the name India first and then Bharat. But they made it clear that India will not be called India alone, and India will always be called as India and Bharat. And that's why they wrote in as many words, India, that is Bharat, so that no one can get confused कि इस देश का नाम सिर्फ इंडिया है. उन्होंने ऑफिशियली लिख दिया कि इस देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत. अब आपकी मर्जी है कि आप खुद को इंडिया बोलो, इस देश का नाम इंडिया बोलो, या आप इस देश का नाम भारत बोलो. तो प्रेसिडेंट ने अगर भारत बोला तो क्या बवाल. बोथ इंडिया एंड भारत, both the names India and Bharat both has equal constitutional value and status. कोई फर्क नहीं. Constitutional relevance, constitutional value, constitutional importance has been given to both names equally, whether it is India or it is Bharat. दोनों में फर्क नहीं है जहां तक संविधान में उनकी अहमियत की बात है. इन दोनों ही नाम की अहमियत संविधान में बराबर है, चाहे आप भारत बोले या आप इंडिया बोले. यही पोजीशन कल तक थी, यही पोजीशन आज है, और यही पोजीशन रहेगी तब तक जब तक कोई सरकार आती है और इसको बदलती नहीं. यानी कल कोई सरकार आकर इसको अमेंड कर दे, इस क्लॉज को, यानी आर्टिकल 1 को, संविधान का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, if any government comes and amends it and makes a change, whether it is India or Bharat or some other name, तब तक ये प्रोविजन ऐसे ही रहेगा. इस देश के दो नाम हैं और दो ही नाम रहेंगे, और दोनों ही नाम की वैल्यू, अहमियत बराबर है. Hence, I feel the objection that Mr. Jairam Ramesh is taking, or any other political party leaders are taking, that objection is illogical, unjustified and mischievous. जो रीजंस मैंने आपको बताया, क्योंकि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम की अहमियत बराबर है, ऐसे में इस पर कंट्रोवर्सी जनरेट करना, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, न केवल ये लॉजिक को डिफाई करता है, बेबुनियाद बेमतलब की बात है, बल्कि ये बदमाशी करने का एक तरीका भी है. अननेसेसरी का एक नया कंट्रोवर्सी आप खड़ी करने की कोशिश कर रहे हो. हाँ, कल ऑफिशियली गवर्नमेंट बोल दे, फिर आपके पास अपना जरिया है, आप रिएक्ट कर सकते हैं. बट विदाउट दैट, टू रेक अप एन इशू लाइक दिस इज, अकॉर्डिंग टू मी, अनजस्टिफाइड. Jairam Ramesh did not stop here. Jairam Ramesh went ahead and wrote further in the tweet. अब उन्होंने क्या लिखा आगे, और ये sarcastic था. This was sarcastic from Jairam Ramesh. Now Article 1 in the Constitution can read, Bharat, that is India, shall be a union of states. But now even this union of states is under assault. तो जयराम रमेश ने आगे लिखा, संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक भारत जिसे इंडिया कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा. यानी अब जो बदल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने अब एक इनविटेशन दे दिया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो सरकार, इन्होंने प्रिज्यूम कर लिया है, कांग्रेस ने प्रिज्यूम कर लिया है, इस देश का नाम बदल चुका, इस देश का नाम केवल एक हो चुका. तो उनके मुताबिक अब जो संविधान का अनुच्छेद 1 है वो कुछ इस तरह से पढ़ा जाएगा, भारत जिसे इंडिया कहते हैं. अब तक इट वाज इंडिया दैट इज भारत, इनके मुताबिक नाउ इट विल बी इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया. तो भारत जिसे इंडिया कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है. नाउ मिस्टर जयराम रमेश, अकॉर्डिंग टू मी, is first of all trying to trivialize the whole thing.
क्योंकि आप इस तरह से ट्रिवलाइज करके या चीजों को तोड़ मरोड़ के नहीं पेश कर सकते। ही इज वन ट्रिवलाइजिंग द होल थिंग एंड इज ओवर एग्जैजरेटिंग द होल इशू। बोथ द थिंग्स इज डूइंग। वन, ही इज टर्निंग अ serious topic and serious issue into a very ordinary issue, or he is trying to turn it into a joke. So trivialize करने की कोशिश है. He is trying to trivialize it. One, and over exaggerating the issue because the change of the country. Mr. Jairam Ramesh is in parliament for long, and he clearly knows that any change in the constitution, Article 1 or name of the country, requires parliamentary procedure, and that parliamentary procedure has not been initiated till now. So जयराम रमेश जैसे सीनियर कांग्रेस लीडर को, सीनियर पार्लियामेंटेरियन को ये पता है कि कोई भी सरकार देश का नाम अगर बदलना चाहती है तो उसे कुछ संसदीय नियमों का पालन करना पड़ेगा। संसदीय कुछ जो परंपरा है, जो तरीके हैं, जो नियम है, उसके तहत उसको गुजरना पड़ेगा और तभी किसी देश का नाम बदला जा सकता है। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने कोई इनिशिएटिव इसको लेकर नहीं लिया है। सरकार ने कहीं नहीं बोला है कि हम देश का नाम केवल एक करने वाले हैं, या इंडिया को ड्रॉप करने वाले हैं, या भारत को ड्रॉप करने वाले हैं, या हम कोई और ही नाम रखने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो जयराम रमेश अकॉर्डिंग टू मी इज ट्राइंग टू जंप द गन और प्रीएम्प्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट। अरे प्रीएम्प्ट द मूव ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट लाना चाहेगी बिल तो लेकर आएगी, आपका काम है उसको डिफीट करना, आप डिफीट कीजिए। लेकिन आने से पहले ही गवर्नमेंट ने कुछ बोला ही नहीं है, आप पहले से इसका मखौल बना रहे हो इस पूरे चीज का, और इस पर डिबेट छेड़ दिया। किस बात पे? क्योंकि प्रेसिडेंट ने एक इन्विटेशन दिया। प्रेसिडेंट को पूरा हक है, प्रेसिडेंट जो चाहे जैसे चाहे वो लिख सकती हैं। आप उसको चैलेंज कर रहे हो। आपको डेमोक्रेटिक सेटअप पे कोई यकीन नहीं है क्या? पार्लियामेंट्री सेटअप पे कोई यकीन नहीं है? यू डोंट हैव एनी फेथ इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? इफ प्रेसिडेंट इज राइटिंग समथिंग, रिस्पेक्ट इट, go and meet her, represent her, speak to her, say why you have written it, but don't question things like this. It's a negative politics that the Congress party is running in this country. Negative politics से आप इलेक्शन नहीं जीतते हो। इलेक्शन आप जीतते हो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स से। आपका एजेंडा क्या है वो बताकर, दूसरे के एजेंडा को गिरा कर नहीं, दूसरे के कंधे पे चढ़ कर नहीं। Ultimately, it's all about elections, right? Elections are coming next year. So सारा एजेंडा तो उसी कारण हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट कर रही है वही गलत। तो फिर आपको इतना लॉजिक तो पता है ना कि कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को बदलना चाहेगी तो उसको कुछ संसदीय नियम को फॉलो करना पड़ेगा और एक प्रोसीजर है, उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। वो प्रोसीजर क्या है वो भी मैं बताऊंगा आपको। बट फॉर पॉलिटिकल रीजंस एंड फॉर इलेक्टोरल रीजंस यू आर जंपिंग द गन and trying to do and create a confusion so that the government situation, position, perception is dented just ahead of G20 meeting. I think it's a frivolous issue to talk about. But ऐसा हुआ नहीं है। जयराम रमेश के कहने के बाद बहुत कुछ हुआ है। अगर जयराम रमेश के मान लो एक मिनट के लिए, so whatever he's see, what happens is that if there is something being speculated, speculation is speculation, it doesn't have credence. So if there is something that is being speculated by anyone, even if it is being speculated by Mr. Jairam Ramesh, it will have no credence because that is not a fact. What's on the table of parliament on such an important issue can only be discussed. So sarcasm on such a sensitive issue doesn't make sense according to me. So आपके पास जब आपको पता है कि स्पेक्यूलेशन है, र्यूमर है, बात हो रही है, निकली है, दूर तक जा रही है, लेकिन उस बात की कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई केवल वो है जो पार्लियामेंट के सामने है।